I'm going to start a lecture series on course topology. So, this is basically a branch of mathematics which which deals with the properties of geometric objects. That are preserved under continuous deformation, but not cutting or gluing. So basically, topology is that branch of mathematics which deals with the properties of geometric objects that are preserved under the continuous deformation but not cutting or gluing. जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे पास आपने एक एग्जांपल देखी होगी कि एक कप है और एक डोनट है। ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हैं। सो बेसिकली हम कप की जो ज्योमेट्री है उसको डिफॉर्म करके हम डोनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको कट और ग्लूइंग किए बगैर। सो इन दोनों में जो चीज़ कॉमन रहती है कि डेट इज़ नंबर ऑफ होल्स। सो इफ़ दिस इज़ अ कप and we said that this is equal to this geometrical shape of donut. So इन दोनों में जो property same है that is a number of holes, so which is same. So हम अब मैथमेटिकली इसको डिफाइन करते हैं टोपोलॉजी को, और फिर इस कोर्स को हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्ली जो बेसिक कंसेप्ट हैं इसके अंदर, और हम इसको आगे लेके चलेंगे साथ साथ। So topological space. Let X be a non-empty set, tau be a subset of power set of X if tau satisfies the following. Properties. Then tau is called topology on X, and the order pair X tau is called topological space.
सो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? नंबर वन, empty set and X should belongs to tau. Number two, for all u1, u2 till un belongs to tau implies that intersection of belongs to tau. This property is called that finite intersection of elements of tau should be in tau. And the third property is for all ui belongs to tau and for all I belongs to I, which is an index set, implies that arbitrary union should be in tau. So arbitrary union of elements should also be in tau. So these are the three properties. So again, I will explain this that in order to be a topological space, we will take a set, non-empty set, and we take a tau which is a subset of power set of X, and if that subset satisfies the following properties, then tau is called a topology on X, and this order pair X and tau is called topological space. So what are the three properties? The three properties are empty set and X belongs to tau. The second one is that finite finite intersection of elements of tau should be in tau, and the third one is arbitrary union of elements of tau should be in tau. So if these three conditions are satisfied, then we call X tau be a topological space. अच्छा, इस एग्जाम्पल पे मूव करने से पहले इधर दो टर्म्स यूज़ हुई हैं विच इज़ आर्बिट्रेरी यूनियन और फाइनाइट इंटरसेक्शन. सो आर्बिट्रेरी का क्या मतलब है यहाँ पर हम उसको देख लेते हैं. Let I be any index set. सो आर्बिट्रेरी यूनियन का ये मतलब है, इसको हम यूँ डिफाइन करेंगे, x such that there exists I belongs to I and x belongs to AI. If I is infinite, then this union will be arbitrary. और अगर ये आई इंडेक्स सेट हमारे पास कोई फाइनाइट सेट हो, तो फिर हम इस यूनियन को कहेंगे कि ये फाइनाइट यूनियन है. अगर हम कोई एग्जांपल देखना चाहें इस चीज़ की, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3, so this is equal to K is equal to 1 to 3
ए के, और इसको हम फर्दर यूँ भी लिख सकते हैं के इज़ इक्वल टू 1 2 3 ए के, या हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि यूनियन इज़ इक्वल टू के बिलोंग्स टू आई ए के, वेयर आई इज़ 1 2 3। सो यहाँ पर जो इंडेक्स सेट है आई, वो एक फाइनाइट सेट है 1 2 3। सो इन दिस केस दिस इज़ कॉल्ड अ फाइनाइट यूनियन। और अगर हमारे पास कोई इंडेक्स सेट यहाँ पर इन्फिनिट सेट हो, लेट्स से हम कह दें कि हमारे पास इंडेक्स सेट आई इज इक्वल टू नेचुरल नंबर के लिए हम कोई डिफाइन कर रहे हैं, तो इन दैट केस हम ये कहते हैं कि हमारा जो दिस इज़ कॉल्ड एज आर्बिट्रेरी यूनियन। एंड सिमिलर इज़ द केस फॉर आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन। सो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन को अगर हम डिफाइन करना चाहें, तो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन को हम इस तरीके से डिफाइन कर देंगे। लेट आई बी any index set so arbitrary intersection is defined as I belongs to I, ai is equal to x such that for all I belongs to I and x belongs to ai। तो आपको पता है कि इंटरसेक्शन में अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करता है किसी सेट में, तो उसको सारे के सारे एलिमेंट्स में होना चाहिए। और यूनियन के केस में हम कोई दो एलिमेंट्स के यूनियन में अगर लेट्स से एक सेट हमारे पास A1 एंड A2 एक सेट है, तो अगर x जो है वो सेट A में बिलोंग कर रहा है और A2 में नहीं बिलोंग कर रहा, तो स्टिल दैट x विल बी इन यूनियन, बिकॉज इसके यूनियन में आ जाएगा। तो डेट इज़ वाई यहाँ पर ये बोला गया है कि यूनियन केस में x सच दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट हमारे पास एक ऐसा आई आना चाहिए सच दैट x बिलोंग्स टू ए, आई बिलोंग कर रहा हूँ। और आर्बिट्रेरी के केस इंटरसेक्शन के केस में हमारे पास क्या फॉर ऑल की कंडीशन है, क्योंकि अगर हम कोई एलिमेंट कहते हैं इंटरसेक्शन में है दो एलिमेंट्स के, लेट्स से A1 है और इसमें नहीं है A2 में, तो हम ये नहीं बात कर सकते कि x बिलोंग करेगा A1 इंटरसेक्शन A2 में, बिकॉज इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। सो कोई एलिमेंट्स अगर इंटरसेक्शन में है तो इट्स मीन कि वो एलिमेंट्स A1 में भी होना चाहिए और वो एलिमेंट A2 के अंदर भी होना चाहिए। तो डेट इज़ वाई इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर कि x सच दैट फॉर ऑल की कंडीशन है यहाँ पर। ओके, सो नेक्स्ट अब हम कुछ एग्जांपल्स पे मूव करते हैं। और एग्जांपल पे सबसे पहले हम कुछ फाइनाइट सेट के ऊपर एग्जांपल्स डिफाइन करेंगे टोपोलॉजिकल स्पेस की, और फिर हम रियल लाइन के ऊपर जाकर वहाँ पर भी कुछ टोपोलॉजी की एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड टोपोलॉजी आ जाती है, अपर रे है, लोअर रे है, अपर लिमिट टोपोलॉजी है, लोअर लिमिट टोपोलॉजी है। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे चल के साथ साथ। सो स्टार्ट करते हैं अपने एग्जांपल्स को। तो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। सो एक्स हमने ले लिया, लेट्स से एक एलिमेंट का एक्स इज़ नॉट एम्प्टी, एंड इसके पावर सेट में एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास एम्प्टी सेट एंड ए। सो अब हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन टॉ क्या है, टॉ विल बी अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स। सो इट्स मीन कि हमने पावर सेट्स के आगे सबसेट में से टॉ कोई एक हो सकता है, और पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, टू एलिमेंट्स हैं। इट्स मीन कि जो पावर सेट ऑफ एक्स है उसके सबसेट्स कितने होंगे, टू पावर एन। सो इसके अंदर टू एलिमेंट्स हैं, सो इट्स मीन देयर आर फोर एलिमेंट्स इन दी सबसेट्स ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स। सो इसके जो पावर सेट्स हैं
उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स आ जाता है एक एम्प्टी सेट आ जाएगा, देन हमारे पास सिंगलटन ए आ जाएगा, एंड लास्ट हमारे पास ये सेट आ जाएगा। अब जो टॉ है वो इन सब सेट में से कोई एक ले सकते हैं। तो टॉ की हमारे पास यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटीज़ आ चुकी हैं कि टॉ हमारे पास क्या हो सकता है, एम्प्टी सेट हो सकता है। सेकंड हमारे पास टॉ क्या हो सकता है, थर्ड हमारे पास टॉ की जो पॉसिबिलिटी है वो ये हो सकती है, एंड फोर्थ हमारे पास जो केस आ गया है उसमें टॉ की जो पॉसिबिलिटी है वो है हमारे पास एम्प्टी सेट एंड सिंगलटन है। अब ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सबसे पहले हमने टॉ तो पिक कर लिया, टॉ की 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब हमने इनमें से चेक करना है कि कौन सा टॉ जो है वो हमारे पास टोपोलॉजी है। तो इसके लिए हमें 3 कंडीशन चेक करनी है, और 3 कंडीशन वही हैं। सबसे पहली कंडीशन उसमें ये थी कि जो टॉ हमने चूज़ किया है उसके अंदर एम्प्टी सेट और एक्स बिलोंग करना चाहिए। तो इस केस के अंदर तो एम्प्टी सेट और एक्स कुछ भी नहीं है, सो दिस कैन नॉट बी अ टोपोलॉजी। सो हम जो फर्स्ट केस है हमारा इज़ नॉट अ टोपोलॉजी, बिकॉज ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करता, तो हमें आगे मूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। सेकंड केस के अंदर हमारे पास एम्प्टी सेट तो है लेकिन एक्स नहीं बिलोंग कर रहा, सिंस x does not belongs to tau, so for first property हमने देखा कि empty set तो है लेकिन इसके अंदर x नहीं है, तो this is also not a topology। थर्ड हमारे पास है एक सिंगलटन सेट A which is itself x, अगर आप देखें कि ये x ही है, सो इस केस के अंदर हमारे पास empty set बिलोंग नहीं कर रहा, तो अगेन फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती यहाँ पर, तो ये भी टोपोलॉजी नहीं है। एंड थर्ड केस अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर आप देखें सबसे पहली कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करना चाहें तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि एम्प्टी सेट और एक्स इसके अंदर होना चाहिए। तो एम्प्टी सेट तो इसके अंदर है, व्हाट अबाउट एक्स? सो एक्स इज़ बेसिकली दिस सिंगलटन सेट इफ यू सी हियर, ओके। सो एक्स इज़ बेसिकली दिस इज़ द सेट एक्स। सो इसके अंदर एम्प्टी सेट और एक्स तो बिलोंग कर रहा है, सो विच मीन्स टोपोलॉजी की पहली इस कंडीशन के अंदर एम्प्टी सेट एंड एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है स्टॉक के अंदर, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर। और सेकंड कंडीशन ये थी कि हमने टॉ के जो एलिमेंट्स हैं उनका फाइनाइट इंटरसेक्शन देखना था। सो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर एम्प्टी सेटर और ए है, अगर उनका हम इंटरसेक्शन लें ए के साथ तो हमारे पास इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, हमारे पास सिंगलटन ए आ रहा है, तो वो बिलोंग कर रहा है टॉ के साथ, ठीक है। और अगर एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन ले लें, ए के साथ ले लें, तो सारी कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं कि हम फाइनाइट एलिमेंट्स के अगर इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो वो टॉ के अंदर बिलोंग कर रहा है। सो इट्स मीन सेकंड कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। और थर्ड कंडीशन हमारे पास ये थी कि फाइनाइट आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टॉ शुड बी इन टॉ। सो इस केस के अंदर अगर आप किसी भी दो एलिमेंट्स का यूनियन ले लें, फाई का फाई के साथ यूनियन ले लें, फाई का ए के साथ ले लें, आपके पास सिंगलटन ए आ जाएगा, और ए का ए के साथ ले लें, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। सो अगर हम लोग देखना चाहें तो ये इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं इस केस के अंदर। सो इट्स मीन जो फोर्थ प्रॉपर्टी है विच इज़ फोर्थ टॉ की सबसेट था हमारे पास, जो पावर सेट ऑफ एक्स का सबसेट था विच इज़ एम्प्टी सेट एंड सिंगलटन ए, दिस इज़ अ टोपोलॉजी ऑन सेट एक्स। नेक्स्ट अगर हम मूव करें एक और एग्जांपल जिसमें हम दो एलिमेंट्स का सेट ले लें, लेट्स से एक्स इज़ ए कोमा बी, और पावर सेट ऑफ एक्स हमारे पास इस केस के अंदर आ जाएगा
empty set, singleton A, singleton B, and A B, which is actually X. अब टॉ ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब आप अगर देखें तो इसके अंदर पावर सेट ऑफ एक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट हैं। और टॉ क्या है, इसका कोई सबसेट हो सकता है। इट्स मीन के पावर सेट ऑफ एक्स का भी सबसेट हमने देखने हैं। तो सिंस इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसका जो सबसेट होंगे उसके अंदर 16 एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास। तो अगर हम इसके टॉ की पॉसिबिलिटीज़ चेक करें, तो टॉ की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो है एम्प्टी, ये सिंगलटन सेट्स आ जाएंगे ए, देन आपके पास आ जाएगा बी, देन आपके पास एक्स आ जाएगा, एंड देन 2 एलिमेंट्स वाले, देन आपके पास आ जाएगा ए, आपके पास आ जाएगा ए एंड एक्स आ जाएगा, बी एंड एक्स आ जाएगा आपके पास, देन आपके पास आ जाएगा एम्प्टी सेट ए बी, थर्ड आपके पास आ जाएगा एम्प्टी सेट ए एंड एक्स, देन आपके पास आ जाएगा एम्प्टी सेट बी एंड एक्स, फिर आपके पास आ जाएगा ए बी एंड एक्स, एंड फाइनली आपके पास आ जाएगा ए बी एंड एम्प्टी सेट। So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So these are the 16 subsets of power set of X. तो अब इनमें से हमने देखना है कि कौन से ऐसे सबसेट्स हैं जो कि टोपोलॉजी हैं या नहीं। सो ये टोपोलॉजी नहीं हो सकता, ये फर्स्ट कंडीशन ही नहीं सेटिस, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। यहाँ पर इसमें हमारे पास फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती क्योंकि इसके अंदर एक्स बिलोंग नहीं कर रहा। इस केस को अगर हम देख लेते हैं तो ये भी टोपोलॉजी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं और फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। सो दिस कैन नॉट बी अ टोपोलॉजी। देन अगर हम सिंगलटन बी के सेट ले लें, इसके अंदर आपके पास क्या एक्स नहीं है और एम्प्टी सेट दोनों कंडीशंस नहीं है। सो फर्स्ट कंडीशन नहीं है तो सेटिस्फाई नहीं हो रही। सिमिलरली फॉर दिस केस एंड सिंगलटन, इसके अंदर आपके पास एक्स है लेकिन एम्प्टी सेट नहीं है तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। सिमिलरली यहाँ पर भी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, आपके पास एम्प्टी सेट है, एक्स नहीं है, तो बाकी कंडीशंस तो बाद में हम देखेंगे, पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। यहाँ पर भी आपके पास एम्प्टी सेट है लेकिन एक्स नहीं है, तो ये भी टोपोलॉजी नहीं हो सकता। ओके, फॉर दिस केस अब देखें हमारे पास क्या है कि हमारे पास एम्प्टी सेट है और एक्स है। सो इट्स मीन के आपके पास फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। फॉर द सेकंड कंडीशन, अगर आप किसी भी दो एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन लें तो वो इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। इन दोनों का इंटरसेक्शन लें आप, आपके पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा और वो इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। और किसी भी दो एलिमेंट्स का इनमें से यूनियन लें, एम्प्टी सेट और एक्स का यूनियन लेते हैं अगर आप, तो वो एक्स आ रहा है और वो भी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। सो इसके अंदर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं आपके पास। सो इट्स मीन के एक जो टॉक का इसमें से केस है विच इज़ एम्प्टी सेट एंड एक्स, सो दिस इज़ अ टोपोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं इस सबसेट के ऊपर। सो ये सबसेट जो है ये ये टोपोलॉजी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। सिमिलरली इस केस के अंदर भी पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही क्योंकि एम्प्टी सेट बिलोंग नहीं कर रहा। यहाँ पर भी एम्प्टी सेट बिलोंग नहीं कर रहा। ओके, सो फॉर दिस केस एम्प्टी सेट है लेकिन
एक्स नहीं है यहाँ पर, विच इज़ ए बी. सो अगेन फर्स्ट कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड हेयर. ओके, फॉर दिस केस अगर आप इस पे मूव करते हैं तो अब यहाँ पर क्या है कि आपके पास एम्प्टी सेट है और एक्स है. सो इट्स मीन कि फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है. सेकंड कंडीशन के लिए आपने क्या चेक करना है कि किसी भी दो एलिमेंट्स का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो अगेन इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा. अब एम्प्टी सेट और ए का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास एम्प्टी सेट आएगा और वो इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है. आप ए का एक्स के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, एक्स बेसिकली यहाँ पर ए कोमा बी है, तो आपके पास अगेन ए आ जाता है और वो इसमें से बिलोंग कर रहा है. सो इट्स मीन एंड सिमिलरली एक्स का आप एक्स के साथ भी ले लें तो सारी कंडीशन इसमें इंटरसेक्शन की पॉसिबल है. सो इट्स मीन कि सेकंड कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है. एंड फॉर द थर्ड केस कि आप यूनियन ले लें किसी भी दो एलिमेंट्स का तो वो यहाँ पर इस सेट के अंदर दोबारा बिलोंग कर रहा है. सो इट्स मीन कि ये भी एक टोपोलॉजी है. सो सेकंड आपके पास आ गया एम्प्टी सेट ए एंड एक्स. सो दिस इज़ अ टोपोलॉजी टू. अगेन नेक्स्ट देख लें आप, इसमें एम्प्टी सेट एक्स और सिंगलटन बी है. सो दिस इज़ आल्सो अ टोपोलॉजी सिमिलर टू दिस रीजनिंग हेयर दैट कि आप किसी भी दो एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन ले लें, एम्प्टी सेट और एक्स बिलोंग कर रहा है और यूनियन भी बिलोंग कर रहा है. ओके, सो जो ये सबसेट है इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही कि आपके पास एक एम्प्टी सेट इसके अंदर नहीं बिलोंग कर रहा. सो दिस इज़ नॉट अ टोपोलॉजी. और फॉर द लास्ट केस अब आप ये देखें कि इसके अंदर हमारे पास एम्प्टी सेट और एक्स है, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड. ओके, सो सेकंड कंडीशन क्या थी कि आपने किसी भी दो एलिमेंट्स का अगर आप इंटरसेक्शन लें तो वो सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए. ए और बी का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो ए और बी का इंटरसेक्शन आपके पास एम्प्टी सेट आ रहा है, वो बिलोंग कर रहा है. एक्स और बी का ले रहे हैं तो बी आ रहा है और बी भी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है. एक्स और ए सिंगलटन ए का आप इंटरसेक्शन ले लें तो वो सिंगलटन ए आ जाता है और वो इस टोपोलॉजी के अंदर बिलोंग कर रहा है. सो आपके पास इंटरसेक्शन भी बिलोंग कर रहे हैं. एंड द थर्ड केसेस आपने यूनियन चेक करना है. तो आप अगर इन दो एलिमेंट्स का यूनियन ले रहे हैं ए और बी का तो वो एक्स आ रहा है और एक्स इसके अंदर बिलोंग कर रहा है. एक्स का ए के साथ लेंगे तो आपके पास एक्स ही आ जाएगा. ठीक है, तो इस केस के अंदर यूनियन भी बिलोंग कर रहे हैं. सो इट्स मीन के एक आपके पास ये केस आया था एम्प्टी सेट बी ए, sorry, this is AB or you can write as X, and the last is A B X and empty set. So टॉ की ये चार पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि टोपोलॉजी हैं. तो आपने देखा कि दो एलिमेंट्स के सेट के ऊपर आपके पास टोटल नंबर ऑफ टोपोलॉजीज़ कितनी आ गई हैं, चार आ गई हैं. सो लेकिन हमारे पास कोई ऐसा सच फार्मूला नहीं है कि जिससे हम ये बता सकते हैं कि तीन एलिमेंट्स के सेट के ऊपर या चार एलिमेंट के सेट के ऊपर या पांच एलिमेंट के सेट के ऊपर इन जनरल हम बात कर सकते हो कि इतनी इतनी पॉसिबल टोपोलॉजीज़ बन सकती हैं. सो अब तीन एलिमेंट्स के लिए लेके चेक कीजिएगा, उसके ऊपर 29 टोपोलॉजीज़ बनती हैं, डिफरेंट टोपोलॉजीज़ बनती हैं. सो एज अ प्रैक्टिस यू कैन डू दैट. ओके, सो एक और चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं और फिर हम इस लेक्चर को एंड करते हैं. और इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग एग्जांपल्स on real numbers. So for any set x which is finite or infinite, tau indiscrete which is empty set and x, this is called indiscrete topology. And the second is tau discrete which is the power set of x, this is called discrete topology. तो कोई भी सेट है चाहे वो फाइनाइट हो या इनफिनाइट हो, उसके अंदर जो एम्प्टी सेट और एक्स की टोपोलॉजी है इसको हम कहते हैं कि ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है. और जो पावर सेट ऑफ एक्स के इक्वल है दैट इज़ कॉल्ड अ डिस्क्रीट टोपोलॉजी.
अगर हम प्रीवियस एग्जांपल में देखें तो ये वाली जो टोपोलॉजी है विच इज़ द पावर सेट ऑफ एक्स, ये हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी थी, एंड एक्स और एम्प्टी सेट हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। सो इस लेक्चर को हम यहाँ पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ और एग्जांपल्स को देखेंगे जो कि रियल लाइन के ऊपर हैं, जिसमें हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी है, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है, अपर लिमिट टोपोलॉजी है, लोअर लिमिट टोपोलॉजी है, अपर रे लोअर रे टोपोलॉजीज, इनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनको कैसे प्रूफ किया जाता है कि ये टोपोलॉजी है या नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच।